Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are starting with the maths, chapter number 1, number system. We are starting it with very basic things from natural number. Natural numbers that represented by capital N, and it's starting from 1, 2, 3 up to infinite. Then whole number that represented by W, and it is starting with 0, 1, 2, 3 up to infinite. Then integers that represented by Z. In integers there are negative numbers from minus infinite to minus 1, then 0, then positive values 1, 2, 3 up to infinite values, that is integers, and that represented by Z. And then rational numbers that represented by Q. Rational numbers that represented by Q, and it has this positive integers, then negative integers, zero, and positive and negative fractions. Positive and negative fractions means if you have a number line, so there are 0, 1, 2, 3. Likewise you can represent minus 1, minus 2, minus 3. So between 0 and 1 there are infinite numbers between 0 and 1, and these all numbers are called रेशनल नंबर्स. अभी हम सिर्फ रेशनल तक डिस्कस कर रहे हैं, उससे आगे भी होता है इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट वी विल नॉट कंसिडर हियर, बट वी आर कंसिडरिंग टिल हियर रेशनल नंबर्स. So there are infinite rational numbers like 1 by 2, 3 by 2, 1 by 6, 7 by 6, likewise. And negative side also minus 1 by 2, minus 5 by 2, minus 3 by 2, likewise. So there is positive and negative fractions, positive 1, 2, 3 integers, negative integers, and 0. So all this set of the numbers, that is called rational numbers. So first that is your integers. First that is your natural numbers N. Then whole number, then integers, and last but not the least, that is Q, rational numbers. So we can say that, very much important thing, we can say that all the elements of Z that already in W, so all the elements of N that already in W, so N is subset of W. Okay. Similarly, all the elements of W that already in Z, all the elements of W that subset of Z, you can also check it from here. 1, 2, 3 up to infinite, that is already covered in W. So N is a subset of W. Subset means all the element of all the element of N that already in W. So N is a subset of W. All the element of W that is in Z, so W is a subset of Z, and Z is a subset of Q. So we can write N subset of W, subset of Z, subset of Q. Clear? So from this you can write also n is subset of z. We can say that it is true or false.
It is true because all the elements of n is already covered in z. चेक कर लो आप, n के कितने एलिमेंट है, 1 to infinite, that is already in this z. So n is a subset of z. Similarly, चलो अब बताओ w is a subset of n, true या false? False. Why? Because w के सारे एलिमेंट्स n में नहीं कवर हो रहे, बिकॉज यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे 0 नहीं है. That means all the element of w is not covered in n. That's why w is not a subset of n. Clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए. नेक्स्ट हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. A rational number is any number that can be named in the form p upon q, that can be named in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर q 0 हो गया तो p upon 0 दैट कैन नॉट डिफाइन. तो आप डिनोमिनेटर में 0 राइट नहीं कर सकते. दैट्स वाई यू टू राइट q इज नॉट इक्वल टू 0. एंड इफ p and q आर बोथ आर इंटीजर्स देन p and q, p upon q, दिस फॉर्म इज अ फॉर्म फॉर रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3/7 is a rational number, -7/4 is a rational number. -7, it is -7 upon 1, so it is -7 upon 1, so it is again rational number. If you write 2, that is again 2 upon 1, so it is a rational number. Clear? One more point, square root of every perfect square, square root of every perfect square number is rational. Means, for example, root 4, the square root of 4 is 2, root 9 that is 3, root 16 that is 4. So square root of any perfect square number is rational number. But root 5, root 11, root 7, इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते. दिस नंबर्स आर नॉट रेशनल. जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, square root of every perfect square number is rational numbers. Clear? Now let's discuss the properties of operations on rational numbers. Properties of operations on rational numbers. तो एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट हम थोड़ा बेसिक से समझने का ट्राई करते हैं. मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप थोड़ा बेसिक से अच्छे से समझोगे तो आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में मैथ्स में मज़ा भी आएगा, खुद से आप सम सॉल्व कर पाओगे तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा और आपका मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे. जैसे इस बार का मैं डिस्कस करूँ, हमारे वहाँ स्टूडेंट थे मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड का पेपर का डिस्कस करता हूँ मैं. तो पेपर एक्चुअली बहुत टफ था 10th स्टैंडर्ड का. आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का पेपर. तो उसमें सिर्फ 23 मार्क्स का ही टेक्स्ट बुक किससे था आउट ऑफ 80, बाकी सब बाहर से था. बट फिर भी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से स्कोर किया था, 95, 98 तक स्कोर करके आए हमारे स्टूडेंट्स. तो वो बहुत बढ़िया बात है. तो उसके लिए मेन थिंग क्या होती है, हम कितना बेसिक से समझते हैं मैथ्स को, कितना अच्छे से क्लियर करते हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना जेन्युइनली वर्क करते हैं, चीटिंग नहीं करते मैथ्स में, कॉपी नहीं करना है कभी भी.
अच्छे से प्रॉपरली वर्क करो। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आप सब मुझे पूछो। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि सिली डाउट है नहीं पूछ सकते, ऐसे डाउट है नहीं पूछ सकते। हर एक तरीके से डाउट आप पूछ सकते हो, किसी को भी पूछो डाउट्स, हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से करो, बढ़िया से करो और मज़े से करो। मैथ्स में कभी भी कंटाला नहीं आना चाहिए और कुछ नहीं। चलो बेसिक से इसलिए मैं करा रहा हूँ तो आपको मज़ा भी आए और सब समझ में भी आए। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, ऐसा कभी नहीं सोचने का कि सर ये तो हमारी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो क्यों करें। समझो यार, मैथ्स को समझ के करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है सब। फर्स्ट प्रॉपर्टी 3, अगर मैं दो रेशनल नंबर है 3/4 एंड 5/7, इन दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा। एडिशन कैसे करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस टू। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर अभी जस्ट एलसीएम का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे निकालना है, और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगा। 7 and 4 इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7, तो 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 4 डिवाइड नहीं होगा। अभी 4 को मुझे डिवाइड करना है तो आप डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते, यू हैव टू डिवाइड इट बाय ओनली प्राइम नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 1 जा 2, 1 1 आ गया। तो आपके ये फैक्टर्स निकल के आ गए। 7 2 2, 7 2 जा 14, 2 जा 28, तो इसका एलसीएम हो गया आपका 28। क्या हो गया एलसीएम 28। और एलसीएम कैसे निकालेंगे और डिटेल में उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट थोड़ा मैं ओवरव्यू दिया मैंने एलसीएम का। तो 28 आ गया। 28 यहाँ पे 4 है, मुझे 28 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 4 से 28, और यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 4 से 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 नीचे सेट हो गया, तो ऊपर क्या हो रहा है, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 20 + 21 41/28। तो अगर आप दो रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हो, इट विल गिव रेशनल नंबर, इट विल गिव रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर का एडिशन करोगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो साइड से बाहर ही निकल जाएगा, कुछ और ही मिलेगा। जैसे मैंने आगे बोला कि रेशनल नंबर के बाहर इरेशनल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नहीं उसमें नहीं जाएगा। अगर आप एडिशन कर रहे हो दो रेशनल नंबर का तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो दो रेशनल नंबर का, वही नंबर लिया तो आपका एलसीएम 7 and 4 का आएगा 28। यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 20, सो 1/28। अगेन सब्ट्रैक्शन करके भी आपका जो आएगा वो आंसर रेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली इट इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 3/4 × 5/7, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसका, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आंसर आ गया, दैट इज अगेन रेशनल नंबर। डिवीज़न का भी ऐसा ही होता है। अगर हम डिवीज़न देखें तो 3/5 डिवाइड बाय 5/7, 3/5 और डिवाइड का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 5 नीचे, पूरा उसको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो 7 3 जा 21, 5 5 जा 25। अगेन ये क्या आ रहा है आपका रेशनल नंबर। बट एक कंडीशन डिवीजन में आपको याद रखनी है, यू हैव टू डिवाइड इट विथ नॉन जीरो नंबर, हैव टू डिवाइडिंग बाय नॉन जीरो नंबर। आप कभी भी यहाँ पे जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। हमने जो पढ़ा है बेसिक मैथ्स में, तो किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। 1 डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, 2 डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टू डिवाइडिंग बाय नॉन जीरो नंबर ओनली। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि अगर हम दो रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द सेट ऑफ
रेशनल नंबर इज क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बोथ आर इक्वल। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 दोनों में आंसर 3 आएगा। दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी, b इंटू ए, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होकर 2 ही आएगा। तो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट हमने यहाँ पे वेरीफाई किया दिस थिंग ओनली फॉर इंटीजर्स। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/5 प्लस 3/7, or you can write first 3/7 and 1/5, both are equal and answer is 22/35. Similarly for multiplication, 1/5 into 3/7 और 3/7 into 1/5, आंसर आपका सेम आएगा 3/35. Clear? But same thing, commutative law you cannot apply for subtraction and division. Why? एक सिंपल इंटीजर से हम समझते हैं, अगर 2 - 1 किया तो आंसर 1 आ रहा है, अगर मैं 1 - 2 करूंगा तो आंसर मेरा -1 आएगा. So both are different. So for subtraction you cannot apply commutative law. Means a minus b is not equal to b minus a. Similarly a divided by b is not equals to b divided by a. For commutative law you cannot apply for subtraction and division. Simple. सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई. अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मीन्स ये क्या होता है हमारा, कि आप ग्रुप बना दो. पहले a प्लस बी मैंने कर दिया, फिर आप c ऐड करो, या फिर पहले आप b प्लस c करो, उसके बाद उसमें ऐड करो a. तो आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल पहले 1/2 प्लस 1/3 किया, फिर मैं 1/4 कर रहा हूँ, या फिर मैंने पहले 1/3 प्लस 1/4 किया और उसके साथ मैं एंड में 1/2 कर रहा हूँ, तो आंसर विल नॉट चेंज. सेम थिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 दैट इक्वल्स टू, आप इसका ग्रुप बना दो पहले इन दोनों का, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, आंसर आपका चेंज नहीं होगा. Same associative property you can apply for addition and subtraction, addition and multiplication. This property you cannot apply for subtraction and division. You cannot apply for subtraction and division because उसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा. Clear? Third property. Now fourth property. Identity elements. 0 that is for addition, 1 is for multiplication. आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स अगर आप एडिशन कर रहे हो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 0. कोई भी नंबर है आप उसमें कौन सी चीज़ ऐड करोगे तो आपका आंसर वही का वही आएगा, ऑब्वियसली 0. सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. कोई भी एक नंबर है उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही का वही आएगा, ऑब्वियसली 1. Sorry. So 1 is identity element for multiplication. Clear? अगर हम देखते हैं कोई रेशनल नंबर के लिए 3/5, अगर उसमें आप 0 ऐड करोगे तो आंसर 3/5 आएगा. 3/2 अगर उसमें आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3/2 आएगा. क्लियर? तो आपका ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट. फॉर एडिशन 0, फॉर मल्टीप्लिकेशन 1. फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स. ये सब आप आगे जाओगे तब बहुत काम आएगा पढ़ने में. ये सारी प्रॉपर्टीज हर एक जगह पे यूज़ होती है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है. तो आप अच्छे से समझ लेना, थोड़ा दिमाग में उतार लेना, लर्न प्रॉपरली कर लेना, तो बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा मैथ्स में. एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, आप एक नंबर है जैसे मेरे पास है 2,
उसमें मैं क्या ऐड करूँगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। 2 में क्या ऐड करते हैं, -2, 2 - 2 क्या हो जाता है 0। तो एडिटिव इनवर्स वो हो गया मेरा ऑपोजिट नंबर। अगर मुझे यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो उसमें मैं क्या ऐड करूँगा तो 0 आएगा। 2 मीन्स यहाँ पे 2 है तो -2 है तो +2, दैट इज योर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर, a प्लस -a दैट गिव्स 0। एक और होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर मेरे पास है कुछ नंबर 2 तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 1 आएगा। तो आपको 1/2 इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 कट होकर आंसर 1 आ जाएगा। तो इफ़ यू हैव a you have to multiply it with 1/a, सो आंसर इज 1 मीन्स उसका रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स होता है इसका ऑपोजिट नंबर, मल्टीप्लिकेटिव होता है उसका रेसिप्रोकल। क्लियर, अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 दिया है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2, दैट इज 1। अगर आपके पास है 3/2 तो इसका रेसिप्रोकल होता है 2/3, आंसर 1। क्लियर, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और लास्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है a इंटू बी प्लस सी तो हो जाएगा a का मल्टीप्लाई होगा b के साथ और a का होगा c के साथ। बीच में इसकी जो साइन है वो एज इट इज प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/7 इंटू 1/6 प्लस 1/9 ऐसा है, तो 2/7 का मल्टीप्लाई होगा 1/6 के साथ प्लस 2/7 का मल्टीप्लाई होगा 1/9 के साथ। क्लियर, सो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सॉल्व कैसे करना है वो सब अभी हम नहीं लर्न कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे बाद में, तब डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल ये प्रॉपर्टी आप समझ लो कि ऐसा एक्सपांड कर सकते हैं हम, उतना समझ लो। इतना एक बार समझ में आ गया तो सॉल्व करना तो आपको आ ही जाएगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्लियर, चलो अभी लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट, दैट इज डेंसनेस। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। डेंसनेस मीन्स कितने नज़दीक नज़दीक नंबर है, उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डेंसनेस, और कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिया हुआ है डेंसनेस। तो अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2, चलो तो अगर हम देखें कि 0 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स है, चलो बोल सकते हैं 1 एंड 2, 2 इंटीजर्स है। बट अगर हम देखें कि 0 एंड 1 के बीच में कोई इंटीजर है, 0 एंड 1 के बीच में इंटीजर नहीं है, तो उसके बीच में ये सारे नंबर्स जो है कौन से नंबर, 0.1 0.2 अप टू 0.9, और यू कैन से 1/10 2/10 3/10 अप टू 9/10। ये सारे नंबर्स है वो क्या है हमारे, तो a/b फॉर्म में हो गए, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, दैट ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सो हम बोल सकते हैं देयर इज नॉट ऑलवेज अनदर इंटीजर बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर्स। मीन्स अगर हमें 0 और 3 दिया हुआ है तो मुझे इंटीजर मिल सकते हैं, बट अगर 0 एंड 1 दिया है तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है। So there is not always another integer, there is not always another integer between two given integers. Always वो possible नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, but between any two rational numbers it is always possible to find another rational numbers. Between any two rational numbers it is always possible to find another rational numbers
एंड वो कितना होगा रेशनल नंबर्स आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो। जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं होते हैं, क्लियर। सो इफ यू हैव टू रेशनल नंबर्स लाइक a by b and c by d, so between these two rational numbers there are infinite number of rational numbers between given two distinct rational numbers। अभी वो रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर। बट यहाँ पे मेन थिंग वो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर दो इंटीजर वैल्यू है उसके बीच में इंटीजर्स हो भी सकते हैं, और 0 और 1 है या 1 और 2 है, 1 और 2 ले लो तो इसके बीच में भी इंटीजर नहीं है, 2 और 3 इसके बीच में भी नहीं है। बट अगर हम 0 और 3 कर रहे हैं तो उसमें दो इंटीजर आ रहे हैं, 1 एंड 2। सो देयर इज नॉट ऑलवेज अनदर इंटीजर बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर वैल्यू, ऑलवेज वो पॉसिबल नहीं है। बट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर 0 एंड 1 और 0 एंड 2 और 1 और 2, देयर इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अनदर रेशनल नंबर। यहाँ पे भी इन्फिनिट रेशनल नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 0 एंड 2 भी इन्फिनिट रेशनल नंबर्स होगा। तो आप कैसे भी करके रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो ये कंसेप्ट हमें समझना था आज, क्लियर। चलो गाइस बाय बाय, अच्छे से लर्न करना, प्रॉपरली प्रिपेयर करना, मज़े से पढ़ना मैथ्स, और हम आगे अच्छे से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कहीं भी अटक रहे हो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, हम उसका इंस्टेंटली डाउट सॉल्व करेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।